Hello, my dear friends. This is Dr. Avinash Kumar, Assistant Professor, Patna Law College, Patna University, Patna, and RT एक्टिविस्ट। और एक बार फिर आप लोगों के समक्ष राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के लेक्चर सीरीज के रूप में एक नया टॉपिक लेके पुनः हाजिर हूँ। थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और उसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। सो हम लोग देखेंगे कि कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। Right to Information Act 2005 ensures maximum disclosure of information. The preamble of Right to Information Act states about transparency and accountability of the working of the public authority. On the other hand, right to privacy is a implied fundamental right, and as you know that in the case of Justice Puttaswamy versus Union of India, the Honorable Supreme Court has decided that the right to privacy is a implied fundamental right, and that case is also known as Aadhaar judgment or Aadhaar case, as you know. At the same time, when we talk about Right to Information Act 2005, we had already discussed that right to information is a kind of implied fundamental right also. But when we talk about the source and nature of these two rights, then we find that the source of Right to Information Act is implicit under the Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, whereas right to privacy is inserted under the Article 21 of the Indian Constitution, as discussed by Honorable Court. Both right to information and right to privacy are recognized as basic human and fundamental rights, have their own sets of origin and functions applicable. The Right to Information Act 2005 talks about maximum disclosure, as you know that, but at the same time the Act states about several exemptions clause such as section 8, section 9 and section 11, which belonging to information with respect of personal information or information with regard to third party information. When we talks about the term public authority, which has been mentioned under the section 2H of the Right to Information Act 2005, we will find that the term public authority, it doesn't mean the term private authority. So the information which has been held by the public authority, the nature of the information must be the type of public information, not private information or personal information. So if suppose that if public authority holds the private information, in that case the value of privacy judgment which has been decided in the Puttaswamy case
is questionable. So there is a question mark ki what will be the value of the judgment which has been recognized as a fundamental right. तो ये जो पब्लिक ऑथोरिटी है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पब्लिक ऑथोरिटी की चर्चा है, तो पब्लिक ऑथोरिटी किस तरह के इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं? तो पब्लिक ऑथोरिटी को पब्लिक नेचर के जो इंफॉर्मेशन है वो होल्ड करने चाहिए. अगर वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर होल्ड करते हैं, एक तो उन्हें होल्ड करनी नहीं चाहिए. अगर वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी भी कारणवश अगर होल्ड करते भी हैं, तो जो सिंस चूंकि वी हैव डेवलप्ड द पब्लिक ऑथोरिटी थ्रू द mechanism provided under the Constitution of India, so for the effective governance, whose information informing this means that the information of ours information and ours information for our governance. तो जो गवर्नमेंट जो उतने ही इंफॉर्मेशन गवर्नेंस के लिए जो जरूरी है, उतने ही इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा होल्ड किए जाने चाहिए. अगर गवर्नेंस से जो नॉन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उस तरह के इंफॉर्मेशन को होल्ड अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटीज करती भी है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न he cannot deliver the information. उसको जो है इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी चाहिए या वो नहीं कर सकती. और हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों ने इंग्लिश रूल को देखा है, और उसी इंग्लिश रूल के थ्रू अपोजिंग ऑफिशियल सेक्रेसी को भी देखा है. हालांकि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 आज के दौर में भी, आज के ट्रांसपेरेंसी रिजिम में भी वो रन कर रही है. उसके बावजूद भी जैसे सुनने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इंडिया में प्राइवेसी लॉ जो है वो आने वाली है. तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वी मस्ट केयरफुल अबाउट दैट प्राइवेसी लॉज, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर ऑफिशियल सेक्रेसी के रिजिम में हम लोग वापस चले जाएं और जो एक स्ट्रिक्ट सेक्रेसी है वो देखने को मिले. सो हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी लॉ अगर आता भी है, तो हम लोगों को बड़ा ही केयरफुल रहने की जरूरत है. प्राइवेसी इज दैट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल दैट his or her personal data belong to that individual and not made use of by any other entity or person unless the individual's consent to the same. इंडिविजुअल्स का वो राइट है प्राइवेसी जिस इंडिविजुअल के परमिशन के बिना उसके डेटा और इंफॉर्मेशन का लीक किसी दूसरे को नहीं किए जा सकते हैं. अगर इस तरह का लीक किया जाता है या डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो इट विल बी अमाउंट्स टू इन्फ्रिजमेंट ऑफ हिज प्राइवेसी राइट्स. According to Black Law Dictionary, the privacy means letting the person alone and non-interference into a person's life. कि पर्सन को अकेला छोड़ दीजिए और उसके लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करनी चाहिए. प्राइवेसी प्रोवाइड्स एन एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल टू द इंडिविजुअल एंड इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, whether that information is useful or not, it doesn't matter. It prohibits the unwarranted invasion of confidentiality or unwarranted invasion of privacy. It stops the disclosure of or interference of individuals' sensitive information, individuals' personal information. And the privacy doesn't means only
regarding the confidentiality only. It also includes the interference by any stranger, interference through any data. प्राइवेसी जो है यह कंट्रोल से संबंधित है, और कंट्रोल यह इंडिविजुअल कंट्रोल से संबंधित है, और यह टोटलिटी में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज्ड करने से संबंधित है। यह एक तरह का ऑटोनोमी प्रोवाइड करता है अपने निजी जानकारी के या निजी सूचना के संदर्भ में। और राइट टू प्राइवेसी केवल और केवल जो है अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ही नहीं है, या अनवारंटेड इंटरफेरेंस ही नहीं है, या इंटरफेरेंस बाय स्ट्रेंजर, और जो डेटा है वो इंडिविजुअल्स डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने से संबंधित भी है, कि किसी इंडिविजुअल्स के जो पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट किए जाए, और उसके मर्जी के बिना, उसकी जानकारी के बिना उनके जो प्रोटेक्टेड डेटा है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। Nowadays, the right of privacy in endanger in our life. अब देखिएगा कि डे टू डे के लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आप मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, और जब मोबाइल चलाइएगा कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे इंस्टॉल, किसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने के बारे में सोचते होंगे या ट्राई करते होंगे, तो उस दौरान कुछ अनचाही जानकारी भी उस मोबाइल एप्लीकेशंस के जो प्रोड्यूसर हैं उस कंपनी के द्वारा वो चाहे जाएंगे, चाहे वो जानकारी उनसे संबंधित हो या उनके काम की हो या न हो। अननेसेसरी आपके फोटोज तक की पहुंच हो या आपके वीडियोस तक की पहुंच है, और जब तक आप उस तरह के परमिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप परमिट नहीं करेंगे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक उनके पहुंच को, तब तक वो पार्टिकुलर एप्लीकेशन आप उस मोबाइल पे अपने मोबाइल पे यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप जब सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि अगर आप किसी चीज़ का सर्च करते हैं तो उस सर्च से संबंधित आपको उस डे के बाद जो है एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आपके ऊपर और आपके एक्टिविटीज के ऊपर किसी थर्ड पर्सन की आइज है। सो ये बहुत ही डेंजर है, और ये बहुत ही इस तरह के डेटा की प्रोटेक्शन की बहुत ही जरूरी है, खासकर आज के एडवांस टेक्नोलॉजिकल युग में। So several countries are adopting the laws relating to privacy. At the same time, the several countries have adopted the law with regard to Right to Information Act. Universal Declaration of Human Rights has analyzed that no one should have the right to interfere in anyone's property or in his person's life. Right to privacy is an uncontested right of the person, which is combined in the right to life and personal liberty of an individual. Right to privacy is enshrined under Article 21 of the Indian Constitution, and according to that article, no person shall be deprived of his life and personal liberty except procedure established by law. And as you know that the right to privacy is a kind of is not an absolute right. So there may be reasonable restrictions upon the application of right to privacy. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के में जो फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इनकॉर्पोरेट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके अंदर ही निहित है, इसलिए इसे इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज में भी रखा गया है।
और यह एक तरह का एब्सल्यूट राइट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के को ध्यान में रखते हुए या उनके लाइट में स्टेट के इंटरेस्ट में इस राइट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं या इम्पोज किए जा सकते हैं। Earlier, right to privacy has not recognized as a fundamental right. So, the right to privacy is recognized in the first time in the case of Khadak Singh versus State of Uttar Pradesh. खड़क सिंह के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू प्राइवेसी को इंटरटेन किया गया, जहां आप लोगों को सबको पता है कि खड़क सिंह जो हिस्ट्री सीटर था और पुलिस यूपी पुलिस के द्वारा उस पे उसके घर में जो है सेवरल विजिट्स किए जाते थे, सडन विजिट्स किए जाते थे, रात में दिन में अनडिफाइंड विजिट्स जो है कभी भी कोई भी शेड्यूल नहीं था और किए जाते। तो उन्होंने चैलेंज किया था अपने इस पुलिस के एक्शन को और अपने इसे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन बताया था। हालांकि उस केस में कोर्ट ने ये तो कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए, उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, बट वो स्पष्ट रूप से राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज में नहीं ला सके। कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जो खड़क सिंह का जो प्राइवेसी वायलेट हो रहा था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया और इसको वायलेशन ऑफ लिबर्टी माना। तो हम फर्स्ट टाइम ये कह सकते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो खड़क सिंह के केस में रिकॉग्नाइज्ड हो पाई थी। आफ्टर गोइंग थ्रू द सेवरल जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स लाइक द केस ऑफ गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP and several other cases, in the case of Justice Puttaswamy versus Union of India, finally the right to privacy has been recognized as a fundamental right in the Aadhaar case. After going through several judgments of the Supreme Court and different high courts like the case of Govind versus State of MP and others cases, right to privacy has been recognized finally as a fundamental right in the case of Justice Puttaswamy versus Union of India. Friends, right to privacy and right to information is complementary in nature. It means that both rights that complement each and other. मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी जो है वो दोनों ही राइट एसेंशियल्स नेचर के हैं और बिना एक दूसरे के बिना दूसरे की कल्पना करना व्यर्थ है। विद्वानों ने राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के संदर्भ में कहा है कि यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें पहला है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर्स करता है और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बिना या सूचना के बिना सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो है या किसी नेशंस का एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं हो सकता है। सो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज राइट टू इंफॉर्मेशन करती है। इसी तरह जब राइट टू प्राइवेसी की हम बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी जो है
उस तरह के राइट को या उस तरह के इंफॉर्मेशन जो किसी पार्टिकुलर पर्सन्स को किसी खास इंडिविजुअल के संदर्भ में दी जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज केवल उसी पर्पस के लिए किया जाता है जिस पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन होता है। सो राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स द डिफरेंट पर्पस, कि आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन के संदर्भ में ही या उस इंफॉर्मेशन देने के पर्पस के संबंध में ही आप उस तरह के इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। अगर किसी नॉन पर्पस में आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है तो आपको उसका कंसेंट लेना होगा। सो इट इज अंडर द पावर ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स that he restrict his personal information। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन इन कंट्राडिक्शन विथ राइट टू प्राइवेसी। अब हम जिस गवर्नमेंट जो है हमसे किसी टैक्स के पर्पस, गवर्नमेंट को हम टैक्स के पर्पस से या किसी आइडेंटिटी के पर्पस से हम अपने से संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड के फॉर्म में होती है। सो अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें तो सूचना के अधिकार रिकॉर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के फॉर्म में है उसको एक्सेस करने की बात करती है। बट जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पर्सनल नेचर के हैं, जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को प्रोवाइड की गई हैं, उस तरह के इंफॉर्मेशन के सप्लाई करने पे रोक लगाती है। तो एक तरह से हम राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन के कॉन्ट्राडिक्शन में भी होती है। थर्ड जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 81J के संदर्भ में राइट टू प्राइवेसी की हम चर्चा करना चाहेंगे। सेक्शन 81J ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यह क्लियरली कहता है कि उस तरह के इंफॉर्मेशन जो जिसके डिस्क्लोजर से या उस तरह के पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से सेफ्टी या इंडेंजर्ड हो सकता है, इंडेंजर की या सुरक्षा या खतरा उत्पन्न हो सकता है, या किसी या नेशंस के सेफ्टी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकती है, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट या ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, उस तरह के इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू पर्सनल प्राइवेसी। जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 11 की भी चर्चा करेंगे जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो वैसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से किसी के प्राइवेसी का या प्राइवेसी का जो है वो इन्फ्रिजमेंट हो, या उसके पर्सनल जो इस तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो जिसके डिस्क्लोजर से वो प्राइवेसी का तो हनन हो ही, साथ ही साथ उसके कम्पिटिटिव पोजीशन को भी हार्म पड़ेगा, और भी तरह की किसी भी पर्सनल वो नेचर का हो, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को सेक्शन 81J के साथ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से संबंधित नॉन डिस्क्लोजर और डिस्क्लोजर से संबंधित प्रोविजंस जो सेक्शन 81J में है, उसमें उस दोनों को यानी सेक्शन 81J और सेक्शन 11 इन दोनों को बैलेंस करके ही जो है आपको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो इन दोनों के डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 81J और सेक्शन 11 इस दोनों के लाइट में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट में जब तक डिस्क्लोजर पॉसिबल नहीं है तब तक डिस्क्लोजर जो है वो नहीं किए जाएंगे। सो फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और द इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू राइट टू प्राइवेसी,
the harm test must be applied or greater public interest test must be applied during the disclosure of such kind of information. अगर इस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर करना हो तो पब्लिक अथॉरिटी को यह चाहिए कि वो जो है इन दोनों इंटरेस्ट में जो है आप डिस्क्लोजर और सेक्रेसी के इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी कर ले और ये देखे कि डिस्क्लोजर से हार्म कितना हो रहा है और सेक्रेसी से हार्म कितना हो रहा है. अगर आउटवेट्स जो है कंपैरेटिव पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट का या ग्रेटर कंपैरेटिव पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट का आउटवेट ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए. अगर सेक्रेसी में हार्म इन कंपेरिजन टू डिस्क्लोजर ज्यादा है तो फिर उस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा. अगर डिस्क्लोजर में हार्म ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सेक्रेसी का तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, right to privacy must be recognized under the purview of public interest test. सो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम राइट टू प्राइवेसी की बातें करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट को नहीं भूलेंगे. और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू प्राइवेसी का के से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में उस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की बात करता है. हालांकि जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी की चर्चा करते हैं तो यह एक दूसरे, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया कि यह एक दूसरे का पूरक है और बिना राइट टू प्राइवेसी का राइट टू इंफॉर्मेशन की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं. बिकॉज हमने पहले भी आप लोगों को पहले के लेक्चर में भी बताया था कि विदाउट सर्विंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट वी कैन नॉट सर्व द सोशल इंटरेस्ट. सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व किए बिना हम सोशल इंटरेस्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं. ठीक उसी तरह इंडिविजुअल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किए बिना हम मास लेवल के जो इंफॉर्मेशन है, आपको सिटीजन्स के जो इंफॉर्मेशन है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशंस, तो नेशंस को हम सर्व करने की बात हम नहीं कर सकते हैं. सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन द इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी रिकॉग्नाइज. सो राइट टू इंफॉर्मेशन and right to privacy must be exercised in a comparative way. So the right to privacy is essential for the implementation of Right to Information Act 2005. तो I hope ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छे लगे होंगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा. आज के वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आ गए हैं तो इसे मैं अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा. तब तक धन्यवाद.